Namaskar, good morning. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat India on this day, 23rd August 2023, Wednesday, I think. It's Wednesday. Yes, Wednesday. मैं सूरज सिंह सिविल इंजीनियर भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आज 23 अगस्त 2023 बुधवार और सुबह के जो भी है 3:31। My title is very clear: Quality of Citizen. Quality of citizen is very significant in our country, and not only in our country, it should be significant in every country. Quality of citizen. So I should say, vote, मत अधिकार, मतदान नहीं, मत अधिकार. मैं इस बात को स्ट्रेस करना चाहता हूँ. हम मत का दान नहीं करते, हम मत का अधिकार का प्रयोग करते हैं. मत का मतलब इंग्लिश में वोट है. राइट ऑफ वोट. If I vote means it is my right to use it or to condemn it. I can say, okay, I want to vote, but to none. Also, we can use not a. But question is not that. Question is, what is meaning of vote in a scenario when leaders do not bother about problems faced by people? उस वोट का मतलब क्या रह जाता है जहां जिनको वोट देकर बनाया जाए नेता, और वो नेता पब्लिक का ध्यान ही ना रखें, पब्लिक की प्रॉब्लम्स को समझें ही नहीं. उस वोट का मतलब क्या रह जाता है? आप क्या समझते हैं? वोट का मतलब सिर्फ जाके ईवीएम का बटन दबाना है या बैलेट बॉक्स में सील लगा के अपना पेपर डालना है? वोट का क्या मतलब है इसका? आप मैकेनिज्म चाहते हैं या उसका कुछ मतलब होना चाहिए? You are interested only in mechanism of vote, that because I have to vote, it's my duty. Of course, it is your duty. You have to vote, but it's also duty of that person who is elected by vote. What does that person do? That is a big question mark. We cannot bypass it or we cannot ignore it. No, it is great responsibility because future of country lies in vote. Who has to come to government power? It is only vote that indirectly brings prime ministers and ministers and others in office of government, in office of executive government, but in office of legislative government, which we call parliament, Lok Sabha. It is your vote that appoints member of parliaments, Lok Sabha. You are appointing authority of member of parliament, and you are also appointing authority of member of legislative assembly. Your vote does it. आपका वोट कोई पावर से लोकसभा का एमपी को नियुक्त किया जाता है, और आप ही की वोट की पावर से स्टेट असेंबलीज के विधायक को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है. तो आप अपने आप को, पहली बात तो यह है कि इतना छोटा मत समझिए. वोट को एक सील लगाना या बटन दबाना ही मत समझिए. वो बटन जो आप दबाएंगे या वो पेपर पे सील बैलेट पे आप जो लगाएंगे, वो 5 साल तक चलती रहेगी. आपकी सील 5 साल तक काम करेगी. आपका बटन तो दबाना 5 साल तक दबा रहेगा. इस बात को अपने माइंड में रखें. कीप दिस इन योर माइंड. इट इज 5 years प्लान फॉर यू. It is political plan for you for this country. And politics does not mean to get seats. You are also a part of politics because you are citizen of this country. It is different that you do not process yourself in, you do not attach yourself in political affairs. But you are a master of politics because you are a voter of this country. And voter means appointing authority of MP and MLA. You are not an officer. You are appointing an employer. You are employer of politicians. What a great power you have. Think of. We have to understand intensity of power. इस पावर में, इस शक्ति में कितनी शक्ति है.
वोट को हम कोई कमोडिटी ना समझें। वोट को हम सिर्फ 5 साल में जाकर एक छोटा सा काम करके आए, लाइन में लग के, नई लाइन में लग के, वो ना समझें। आपका वोट आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आपका वोट देश किस तरफ जाएगा उसको डिसाइड करेगा। और वो तभी सही होगा जब आपका माइंड सेट होगा। आप पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और बिना पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ने वोट देना है और दोनों को एक एक वोट का अधिकार है। इसलिए आप वोटर होना छोटी बात मत समझिए, और ये मत समझिए कि मैं वोट का दान करने जा रहा हूँ। मैं वोट दान नहीं कर रहा हूँ, मैं वोट का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं वोट का अपना अधिकार ले रहा हूँ। मैं अपना अधिकार जो इस देश को चलाने का मेरे हाथ में है, एक भारत के नागरिक होने की हैसियत से, मैं उस अधिकार को किसी दूसरे को दे रहा हूँ, जिसको मैं अपना एमपी बनाना चाहता हूँ या एमएलए बनाना चाहता हूँ। इस बात को इस तरह क्यों ना समझा जाए? Why should I not understand and you understand like that? Whatever right I am going to use to cast a vote, it is not donation. It is right of use of my power. Whatever power has been invested in me by constitution of this country, I use that power to appoint my MP as well as my MLA. So I am giving direction to those representatives who would lead this country on my behalf. So I am going to lead this nation through my political representatives or my people's representative. That is factual state. If you have little time, you can go and read constitutional article, and that is an electorate, election commissioner, where it's given in your constitution of this country. You can find that it is you, it is people of this country who would constitute Lok Sabha or state assemblies. So you are going to constitute by your own vote. This means it is more than bank balance, because you have not to spend anything. You have to spend your mind, you have to spend your vision, you have to think of what shall happen in this country. आपको सोचना है इस देश को मुझे किस तरफ लेके जाना है। ये सोच आपकी और 130 करोड़ की या 60-70 करोड़ की जितने भी वोटर हैं, बहुत बड़ी बात रखती है। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा वो मैं नहीं जानता, उसको वही करना पड़ेगा जो वोटर चाहता है, और वही बात वो अपने प्लान में या मैनिफेस्टो में लाता है, ये बताने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ। मैं कैंडिडेट, मैं पॉलिटिकल पार्टी या जो भी हो, मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ। तो खाली कह देने से चाहता हो जाएगा? Only if I say I want to do it for you, is it enough? आप वोटर हैं, आप एम्प्लॉयर हैं आप कहेंगे कैसी बातें कर रहा है, इतनी बड़ी पावर कहाँ है? इतनी ही बड़ी पावर है, बल्कि इससे भी बड़ी पावर है। थोड़ी पावर कम लिखी गई, शायद उनको विश्वास नहीं था जब ये संविधान बना, नहीं तो एक और भी लिख सकते थे वो, कि आप अपने भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव को, भेजे हुए प्रतिनिधि को वापस भी बुला सकते हैं, और उसका प्रोसीजर ये है। बस इतनी सी बात डिफेक्टिव है उसमें, जिसको पूरा करेगा कोई नहीं। जब तक एक सामान्य व्यक्ति जो गली में है, जिसका कोई राजनीतिक लिंक नहीं है, पॉलिटिकल लिंक नहीं है, वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचता, तो कोई नियम में बदलाव नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को मैं अपॉइंट करता हूं, मेरा क्या अधिकार नहीं है उसको उस नियुक्ति से हटा दूं? एम्प्लॉय और होता है कंपनियों का, या सरकार भी होती है, तो जिसको एम्प्लॉय करते हैं उसको सस्पेंड भी करते हैं, उसको नौकरी से निकालते भी हैं, उसको फैसिलिटी भी दी जाती है, उसको सजा भी दी जाती है। तो जब उन एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा हो सकता है, तो तुम तो भाई बहुत बड़े एम्प्लॉय हो, इस देश को चलाने के कर्ता धर्ता हो हमारे बिहाफ पे, तो हमें क्या ये अधिकार नहीं होना चाहिए? बस यही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा वोट का भी क्वालिटी चाहिए।
खाली लिख देने से नहीं होता। मुझे मेरा क्वालिटी वोट होना चाहिए, मैं खुद क्वालिटी वाला होना चाहिए, और जिसको मैं अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ वो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। ये कौन देखेगा? सीधा सा उत्तर है, ये मैं स्वयं देखूंगा, क्योंकि मैं वोटर हूँ। अगर मैं इतना भी नहीं सोच सकता तो बस इसका कोई जवाब नहीं है। फिर ये मत कहो कि राजनीति गंदी है, गवर्नमेंट गंदी है, या हमारा सिस्टम गंदा है। कोई गंदा नहीं है, गंदा मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं वोटर होने की हैसियत से गंदा हूँ। I have no right to blame government. I have no right to blame ministries. I have no right to blame system. I have only right to blame myself because I got an opportunity at time of vote and I did not understand, I did not analyze that vote to whom I should give this vote. So it's my fault. Of course, I'm not that much expert in politics, but I understand power of vote. I understand my vote once goes, it cannot come back to me. I cannot withdraw it. That is also accepted. I cannot withdraw it, but I can think more and more many times before voting, and that is important, very important. If I can't understand that, there is nothing that can be done at all. Why people don't understand this point? I can't answer this. I can't answer this. मुझे और मेरी तरह हर वोटर को सोचना चाहिए। इसीलिए किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, कैसे फैसला लेना है, ये भी एक वोटर की क्वालिटी होनी चाहिए। और वोटर का मतलब है इस देश का नागरिक, इस देश का सिटीजन। सिटीजन सबसे बड़ा अधिकार है किसी भी देश में रहने के लिए और उस देश का स्वामित्व अपना हिस्सा लेने के लिए। वोट इज only a right that you have to take ownership of, responsibility of, accountability of, liability of, part of this nation according to your share, and that is 1 over total population of this country. If I cannot understand this as voter, then I am not real voter. I am just formal voter. You can say there are those people who are real voters and also those people who are formal voters. Majority of people are formal voters. They do not analyze what is purpose of voting, why voting is done, what they will say only I want this person to be chief minister or I want this person to be prime minister, and there is that weakness lies in. That place weakness lies in. How to check it? This responsibility goes to all those literate class and you can say qualified people, professional people, educated people. They should at least teach those who cannot read or who cannot understand difficult English of difficult English language which constitution contains in। वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, जो पढ़ सकते हैं संविधान को किसी भी भाषा में, उनकी कर्तव्य बनता है कि कम से कम अपने घर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जिनका उस पर एक्सेस हो सकता है, उनको समझाएं कि वोट का मतलब क्या है, मत अधिकार का मतलब क्या है। लेकिन वो तभी समझा सकते हैं वो स्वयं समझें। वो बड़े बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, बड़े बड़े वकील हो सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वोट का मतलब समझना भी उतना ही जरूरी है जितना बहुत पढ़ा लिखा होना और जितना बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होना। वोट का मतलब कहीं लिखा नहीं है, बस इतना लिखा है कि आपको वोट देना है, आपका अधिकार है। अधिकार का प्रयोग करना है, नहीं करना है, वो भी कहीं जबरदस्ती नहीं है।
It is significant to understand, first of all, why vote is given, why vote has been included within constitution framework. What is reason behind that? It is not kingdom, that is one reason. It is republic, that is another reason. It is sovereign, that is one more reason. It is democratic, also one reason. If there are so many reasons, then why should I worry about that? This means my vote right is preserved very well. And we can change our leaders, we can change our future makers, our legislatures by using this power. Is it not significant to see that? Then, if we cannot do this even after that, I should say that voter is irresponsible. If voter cannot understand meaning of vote, voter is responsible. It's always said every vote is significant, every vote is important, and everybody has to take part in the elections. Yes, that is right. It's nobody has to tell me. I have this, I understand this. That's why I have been voting. I have voted many times. Everybody has voted many times. हमने बहुत वोट किए हैं इस देश की जनता ने. 1950 जब से ये संविधान लागू हुआ तब से वोट ही वोट तो दिए हैं. देश नहीं तो विकास कैसे किया है? हो सकता है देश ने विकास पूरा ना किया हो, मान लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि देश ने विकास नहीं किया. आपके वोट की शक्ति कहीं ना कहीं तो काम आई है. बात समझने की है. इतना बड़ा देश हो चुका है. जब हम स्वतंत्र हुए थे शायद 30 करोड़ रहे होंगे या थोड़े कम, और आज 100 करोड़ और या उससे ज़्यादा. 1950 या 47 और आज 2023, 77 वर्ष, 77 वर्ष चल रहे हैं. और हमने क्या किया है अब तक ये बताने की आवश्यकता नहीं है. आंखें देख सकती हैं, दिमाग सोच सकता है. बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हमारे देश में पढ़े पैदा हुए, एजुकेशन ली. ऐसा कोई फील्ड नहीं जो हमारे देश में ना हो, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं जहाँ हमारे लोग ना हो इस देश में, और ऐसा कोई कर्म नहीं फिजिकल जो हमारे वर्कर्स ना हो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, डेवलपमेंट में, कहीं भी. तो मेरे साथियों, सिर्फ मैं इतना कहूँगा, विकास तो हो रहा है. वो अलग बात है, कभी स्पीड कम होती है, कभी स्पीड ज़्यादा होती है. वो डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है. बजट होगा तो विकास करेंगे. जब देश आज़ाद हुआ था तो 350 करोड़ का बजट होता था केंद्र का, और आज देख लीजिए कितना है. इसमें कोई झूठ नहीं कि देश आगे बढ़ा है. हाँ, ये सच है कि जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, और उसका कारण है कि हम लोगों की क्वालिटी नहीं है हमारे देश के नागरिकों की. और क्योंकि देश के नागरिकों की क्वालिटी नहीं है, इसलिए हमारे नेताओं की भी क्वालिटी नहीं है, हमारे प्रोफेशनल्स की भी क्वालिटी नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स की भी क्वालिटी नहीं है. और इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. नहीं, सच बोलना सबसे बड़ा सत्य होता है. सच बोलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए. सच हर व्यक्ति नहीं बोल सकता. सच वही बोल सकता है जो दिल का साफ, मन का साफ, माइंड का साफ होता है. Truth always wins, remember. Truth can never be defeated. Yes, success can be delayed, but truth always triumphs. सत्य की हमेशा जीत होती है. ये अलग बात है जीत होने में समय लग जाए, और झूठ कभी जीत नहीं सकता, चाहे 1 करोड़ बार भी बोला जाए. इसीलिए क्वालिटी को समझना हर व्यक्ति के बस का बात नहीं है. मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी इन टोटलिटी की बात कर रहा हूँ. अगर मैं देश का नागरिक हूँ तो मुझे अपने कर्तव्य भी समझने चाहिए. ड्यूटी तो बड़ा आसान है करना, लेकिन मुझे करना क्या है ये तो पता होना चाहिए. What I have to do, I have to know. What is my duty, I have to do. But is it that easy? How many people in our country know what is constitutional duty defined in Article 51A of Constitution of this country? How many people have read it? I'm not talking of advocates and lawyers and judges. It is their profession.
They are supposed to know it. But I'm talking about non-law people who never have any information of law, who never have any interest in that. I don't find intensity of people, or you can say majority of people who know anything about constitution or law. Yes, they know constitution exists, but they don't know what is written within that. I'm not asking, I'm not requesting everybody to go and read everything. No, at least you should know about yourself. What is your duty? What is your right? What is your power in constitution? Constitution was awarded to self. It was approved by self. It was written by self. Of course, it was written by a team whose chairman was Dr. Bhimrao Ambedkar. But they supported us, they helped us. So it is a document approved and given to ourselves by this country's people, and to whom we call we people of this country. And we people, in fact, constitute this country that is known as Bharat India. We constitute ourselves, we appointed ourselves, we voted to ourselves, we approved ourselves this constitution. So this is self-defined, self-approved, sovereign-based constitution. It is not low-profile document. In fact, there is no other document about this document at national level in relation to our country. It's our, you can say, first law of this nation, first law above all other laws. And whatever laws are legislated, those are legislated only in line to provisions provided within or mandated within Constitution of India. If law doesn't satisfy Constitution of India, it goes ultra vires. It can be set aside by Supreme Court of this country. So you are sitting yourself at that position where you can say that you are employer of MPs and MLAs, etc., etc. And that is your salary. You give salaries to those people, these employees, MPs, and MLAs through your own taxation. Consolidated Fund of India has been created for that purpose. So I'm not going to that because that's the quality of a nation or quality of people. When I say quality of people or quality of voter or quality of citizen, this clearly indicates that I talk about quality of this nation, which is very significant point to understand. अगर हम क्वालिटी को नहीं समझ सकते, हम देश की क्या क्वालिटी चाहते हैं, हम हमारे नेताओं की क्या, नेता या जिनको हम कह सकते हैं हमारे एम्प्लॉयर्स, उनकी क्या एम्प्लॉय सॉरी, उनकी हम क्या क्वालिटी चाहते हैं, ये क्वालिटी कहीं लिखी नहीं है. हमारे एमपीस को, हमारे एमएलएस को पता होना चाहिए कि उनके कर्तव्य क्या हैं जिस सीट पर वो बैठे हैं. उनको पता नहीं और हमको भी पता नहीं, और ना ही कोई शिक्षा दिखाना चाहता है, कोई बताना चाहता है पब्लिक में कि आपके एमपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या कहीं लिखा है इस जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इनका? नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा है? बहुत बातें उठती. स्पेशली दो लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, एमएलए एंड एमपी लोकसभा. These are very significant powers, very significant positions in our country, because these positions ultimately appoint through president of this country, prime minister of this country, minister of this country, and also governors in place of president of this country appoint chief ministers of state and ministers of state. Your power to appoint prime minister is exercised by president of this country, and your power to appoint chief minister is exercised by governor of respective states. So what do you think? Of course, every citizen cannot appoint prime minister. It is only delegated power given to president according to constitution, who appoints prime minister. Nowhere is written in constitution, again and again I say, I reiterate, I iterate, that there is no power, there is no mandate, there is no provision
There is no article in Constitution of India which asks you or instructs you or appeals you means voter, to elect prime minister or minister or chief minister or someone else. It's not given, not indicated, not directed, not mandated within constitution that voter in public has to has to elect prime minister or otherwise. No, it is not as such. Voter cannot elect prime minister, voter cannot elect minister, voter cannot elect chief minister, voter cannot elect ministers of state. Voter can elect those people to whom prime minister would report or chief minister would report. वोटर किसको अपॉइंट करेगा, वोटर किसको इलेक्ट करेगा, वोटर उसको इलेक्ट करेगा जिसको इस देश का प्रधानमंत्री रिपोर्ट करेगा, इस देश का चीफ मिनिस्टर जिसको रिपोर्ट करेगा। आप बहुत ऊंचे हैं सिटीजन के हैसियत से, इसीलिए अपने अधिकार तो आप यूज करते हैं, लेकिन अपने अधिकार को आप समझते नहीं हैं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, कहना पड़ता है, कई बार दुख भी होता है कि लोग कहेंगे देखिए ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहा है, ये मिनिस्टरों के खिलाफ बोल रहा है, जबकि मैं किसी के खिलाफ बोल नहीं रहा। मैं सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुन सकता एक वोटर की हैसियत से, आप भी नहीं चुन सकते। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को चुनना है, इस बात को नाली में फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं है इस बात का। आप चुन ही नहीं सकते, बोल सकते हैं हवाबाजी में, वैसे ही जी मेरे को तो इसको पीएम देखना है, देखना अलग बात है, चुनना दूसरी बात है। मुझे कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन इलेक्शन नहीं होती है, और एमपीज भी जिसको चुनते हैं उसको हाउस का लीडर चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते हैं। बात बहुत छोटी सी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। शोर मचा रहता है जब देखो चैनल्स पर, टेलीविजन पे, प्रिंट मीडिया में, सब जगह, यूट्यूब पे बिना मतलब का शोर, जो खास तौर से पढ़ा लिखा वर्ग जिसको हम जर्नलिस्ट कहते हैं, रिपोर्टर्स कहते हैं, वही बिना मतलब का शोर मचाता है। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, जबकि ये क्वेश्चन ही गलत है। मेरे कहने से कैसे हो जाएगा? मैं ठीक है, मेरा ख्याल है, मेरी इच्छा है कि इस आदमी को देखें, वो अलग बात है, लेकिन मैं वोट ये सोच के दूं कि कौन होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, माना ही नहीं जा सकता। अब हमारे देश के लोग कितना इस बात पे सोचते हैं वो अलग बात है, और ये इन्हीं नेताओं का बनाया हुआ खेल है, हर पार्टी का, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और हो, इनके बनाए हुए खेल हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आपको प्रधानमंत्री को किसको बनाना है या आपको किसको अपना स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाना है। संविधान इस बात की बात ही नहीं करता। हम बात करते हैं क्योंकि नेता बात करते हैं, नेताओं के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, इसीलिए वो बात करते हैं, वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बात नहीं करते, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट तो जो बात करेगा शायद वो राजनीति में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति ये फ्रेम हो चुकी है, गलत फ्रेमिंग, जैसे इस पार्टी को नहीं देंगे तो उस पार्टी को देंगे, इस चेहरे को नहीं देंगे तो उस चेहरे को देंगे। तो हम लोगों ने खोल के पुस्तक पढ़ी नहीं संविधान की, पढ़ना भी नहीं चाहते। हम पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले सकते हैं, मेडिकल साइंस की डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन हम 1, 2, 3, 4 आर्टिकल पढ़ नहीं सकते जहाँ पर ये लिखा है कि किसका मतलब क्या है। हम नहीं चाहते, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स भी नहीं चाहते कि जॉब को डिस्क्राइब किया जाए, कि एमपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी प्रिविलेजेस हैं, क्या उसके अधिकार हैं और क्या पब्लिक के अधिकार हैं।
चाहे वो एमपी हो या वो एमएलए हो। प्रधानमंत्री क्या करेगा ये भी कहीं नहीं लिखा। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसके बारे में उसकी ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, ये तो ज़्यादा जरूरी है छोटे व्यक्ति के बारे में जानने से। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटी नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता तो कौन देखेगा कि कौन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैं ड्यूटी अपनी जानता हूँ, अपने जॉब की जानता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, एमपी क्या करेगा, मैं नहीं जानता। तो मैं क्या जानता हूँ? फिर किस बात का वोट है? आखिर वोट क्यों? कहेंगे जी स्टेट लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट मेंशन है, कौन कर, ठीक है वो मेंशन है, खाली इसमें सब्जेक्ट्स मेंशन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या है, कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर का क्या रूटीन होना चाहिए ड्यूटीज का, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी अपनी एक लिमिट कहाँ तक है, मंत्रियों को वो किस तरह से यूज करेगा, मंत्री आप बाकी कैसे काम करेंगे, ये किधर है? एमपी का कहाँ है कि लोकसभा का एमपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्यसभा की एमपी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बस रूल्स बना देते हैं हाउस को कैसे ऑपरेट करेंगे, या इस पॉइंट में क्या है, उस पॉइंट में क्या है, उतना काफ़ी है। अगर जॉब ड्यूटी होगी उसमें ये भी आएगा प्रधानमंत्री का कि आपको महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हुआ जो आपने बनाया था बजट में, आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस बात पे क्या एक्शन लिया, आपको बताना पड़ेगा कि आपने आपके आपके अंडर जो बैंक ने लोगों को कर्ज दिए किस बात के लिए दिए और वो कर्ज कहाँ गया। पब्लिक का हक है, पब्लिक का पैसा लगा है, आपका नहीं लगा। पब्लिक को जानने का पूरा अधिकार है कि आपने देश का पैसे का क्या किया, क्योंकि अल्टीमेटली देश का बजट ही इम्पोर्टेंट है। आपके ऐसे क्या तैयारियां की देश में कि पब्लिक कंट्रोल में रहे, प्राइस राइज कंट्रोल में रहे, एजुकेशन कंट्रोल में रहे, हेल्थ कंट्रोल में रहे? ऐसा आपने क्या किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है, जितनी बड़ी पर्सनैलिटी होती है, उतने बड़े क्वेश्चन भी होने चाहिए, उतना बड़ा रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। मैं नहीं देता जवाब, मैं नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सैलरी लेते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर साहब आप सैलरी लेते हैं, नहीं भी लेते तो मेरा फॉल्ट नहीं है उसमें, आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, जवाब दीजिए। नहीं देंगे तो आप अपने काम से भागते हैं। हम आपकी सैलरी काट सकते हैं लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे, छोटी काम है, छोटी बात है ये। आप अपने आप को तारीफ करते रहें, फर्क नहीं पड़ेगा, आप कीजिए अपनी तारीफ, लेकिन हमारी भी तो बात सुनिए। आप नहीं सुनेंगे तो आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हों या चीफ मिनिस्टर हों। गलती से राष्ट्रपति महोदय को बांधा हुआ है संविधान में एक ही सेंटेंस से कि दोबारा वो क्वेश्चन नहीं करेगा किसी बिल पे, बस वो बंध गया और आपने उसको अच्छी तरह बांध दिया। हटाइए इस बात को, क्यों नहीं कर सकता राष्ट्रपति क्वेश्चन? पब्लिक का आदमी है, सबसे बड़ा हेड है वो, निकाल दीजिए संविधान से इसको, ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। गुलामी बना दिया आपने उसको। राष्ट्रपति महोदय इनडायरेक्टली स्लेव ही हैं, एक बार क्वेश्चन करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, उन्हें अधिकार नहीं है पूछने का। ऐसी बात है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए राष्ट्रपति की भी, प्राइम मिनिस्टर की भी। क्यों भाई, आपने खरीद लिया देश को, प्रधानमंत्री महोदय आपने खरीद लिया देश को, आपको वोट ही दिया गया है, आपको बाकी कुछ नहीं दिया गया। सेल्स डीड आपसे साइन नहीं हुई है देश की, कन्वेंस डीड साइन नहीं किया आपने, आपको सत्ता दी गई है देश के भले के लिए। और अगर आप इस बात को नहीं समझ सकते फिर क्या किया जाए? फिर तो वोटर को जो करना चाहिए वो करेगा, पर वो अफसोस की करता नहीं है। वोटर इतनी बात समझता नहीं है और समझेगा भी नहीं जब तक वो संविधान का मतलब नहीं समझेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एवरी वोटर।
Voter has to understand what provisions have been given in the constitution, what is meaning of these articles, what is meaning of election of prime minister, and what's meaning of appointment of prime minister. There's a difference between two. You have power to elect MP as well as you have power to elect MLA, but you have no power at all to elect any minister or any prime minister or president or whosoever. This is very clearly given. People don't understand this, and this press people, journalists only cry in wilderness. They don't know anything about other cells. They have to know it. Scenario can change when you analyze candidates, but you don't analyze. You only say, no, 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 I want this prime minister, I want that prime minister. And that is really nonsense in this country. Who will take place of this prime minister and who will replace this prime minister? What does it mean? Did this prime minister come from skies, from heaven? No. Why should I worry about that? All right, I'll be back to you. Don't worry about this. It's time now, and I have to close this. I'll see you back again. Jai Bharat.